اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور واجب الاحترام ساتھیو۔ دوستو، میں ہوں حسنین اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل 14 ستارے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، یہ 240 ہجری کا واقعہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے دن کو فجر کی اذان حرم کے میناروں سے بلند ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھوتی ہوئی باد نسیم کے جھونکوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پردوں سے لپٹ رہی تھی اور اللہ کے مخلص بندوں کے دلوں پر تجلیات کی بارش برسا رہی تھی۔ کعبۃ اللہ کے گرد مومنوں کی صفیں نماز کے لیے درست ہو رہی تھیں۔ ان خوش نصیبوں کی آنکھیں براہ راست بیت اللہ کے جمال سے منور ہو رہی تھیں، جبکہ دیگر نمازیوں کی صفیں بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ تو تھیں، لیکن دور دراز مسافت کی وجہ سے صرف دلوں کی آنکھوں سے اس کا دیدار کر رہی تھیں۔ دور کے ان نمازیوں کی یہ صفیں بلند و بالا پہاڑوں اور سمندری جزیروں، شہروں اور بستیوں، صحراؤں، وادیوں، کوہساروں کی چوٹیوں اور محلات اور جھونپڑیوں، قید خانوں، مرغ زاروں، لک و دک ریگستانوں اور برفانی پہاڑوں کے پیچھے کھڑی تھیں۔ وہ اس وقت تک مسلسل کھڑی ہوتی رہیں گی جب تک اس خطہ ارضی پر مسلمان آباد رہیں گے۔ دوستو، اہل مکہ یہ اذان سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے اور ایک 86 سالہ بزرگ کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو۔ انہوں نے شیریں اور ترش، سرد اور گرم، خشک اور تر انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر نماز شروع کر دی، لیکن یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑا ہونے سے بھی قاصر تھا۔ اس بیچارے نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی گزشتہ رات بھی فاقہ سے گزری اور دن بھی بھوک پیاس سے گزرا تھا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو ایک کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بذات خود اس فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، کیونکہ عرصہ دراز کی تنگ دستی نے اسے مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنا دیا تھا۔ اسے کوئی غم کھائے جا رہا تھا تو وہ بھوکی ننگی 4 بیٹیوں، 2 بہنوں، ایک بوڑھی ساس اور مسکین بیوی کا غم تھا، جن کا وہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو مالداروں کی شاہ خرچیوں کو دیکھ کر دنیا پہ للچاتا اور لوگوں سے حسد کرتا، لیکن یہ بوڑھا بزرگ ایک مثالی مومن تھا۔ اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے رزق تقسیم کر رکھا ہے۔ کسی کا اس میں کچھ اختیار نہیں۔ لوگ نہ رزق دے سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں، اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا، اگرچہ میں کمزور ہی صحیح، اور جو کچھ دوسروں کے مقدر میں ہے وہ مجھے ہرگز نہیں مل سکتا، اگرچہ لاکھ جتن کر لوں، کیونکہ وہ تقدیر کا قلم لکھ کر فارغ ہو چکا اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ الحمدللہ، کھڑا ہوا اور قمیض اتار کر پکارنے لگا، لبابا لبابا۔ یہ سن کر ایک عورت آئی جس کا تن پیوند لگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے قمیض اتار کر اسے دی اور پھٹا پرانا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ عورت نے کہا کہ ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں دیکھا، اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے۔ تو اور میں تو صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں اور بوڑھی عورت تو صبر سے قاصر ہے، انہیں بھوک نے نڈال کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید اللہ کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے دے دے جس سے ہم روزہ افطار کر سکیں۔ ابو غیاث نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ آفتاب طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بوڑھا بزرگ گھر سے نکلا اور مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ گزشتہ رات اور دن کے فاقے نیز بغیر کھائے پیے روزے کی وجہ سے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ مکہ کی نشیبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایمان کی حالت میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا سکے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے۔ وہ انہی سوچوں میں گم سم مٹی کورید رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو گیا۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے سانپ کی دم ہے۔
उसने तावीज पढ़ा और हाथ खींच लिया। फिर दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश ये सांप मुझे डस ले और मैं मसाइब से आजाद हो जाऊं। लेकिन मान ख्याल आया कि मोमिन के लिए कहाँ जायज है कि मौत की तमन्ना करे, खुदकशी तो इस्लाम में हराम है। चुनाचे उसने अल्लाह से माफी मांगी और दोबारा इस चीज को गौर से देखने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बेहसो हरकत पड़ी है। इसे पांव की ठोकर भी लगाई, लेकिन वो चीज ज्यों की त्यों पड़ी रही। उसने हाथ से मट्टी हटाकर उसे पकड़ा तो हिमयानी निकली जो सोने के दीनारों से भरी हुई थी। उसे देखकर भूख और प्यास खत्म हो गई और आसाब में नई कुव्वत पैदा हो गई, बल्कि जवानी लौट आई। सोचने लगा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ। ये माल अपने घर वालों के हाथों में थमाऊंगा तो वो किस कदर खुश होंगे। वो उस वक्त हसीन और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में खुशी से दीवाना हो रहा था। अचानक ईमानी हिस्स बेदार हुई। दिल में अलका हुआ कि ये माल तेरा नहीं बल्कि लखता यानी गुमशुदा है। साल भर ऐलान करने के बाद इस सूरत में हलाल होगा जब असल मालिक ना मिले। जब साल की मुद्दत और अपने रात के खाने का तस्वुर किया तो कौवा जवाब दे गए कि क्या खबर साल भर जिंदा भी रहूंगा या नहीं, और ये भूखी नंगी बेटियां क्या खाएंगी, क्या पहनेंगी। ख्वाहिश पैदा हुई कि थैली को वापस इसी जगह रखा है और आजमाइश में न पड़े। लेकिन बजाते खुद दानाओ आले मोमिन था, जानता था कि अगर गुमशुदा माल को देखकर हाथ ना लगाया जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं, अगर उसे पकड़कर दोबारा रख दिया जाए तो जिम्मेदारी रखने वाले पर होगी। इस किस्म के तफर्रुकात दिमाग में टकराने लगे। उसे महसूस हुआ कि कनपटियों की हड्डियां चूर हो रही हैं। एक तरफ ये ख्याल उठता कि दबा रखो, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है, इसके जरिए भूखी नंगी बीवी और बेटियों का पेट भरो और उनका तन ढांको। अगर ताकत हुई तो फिर दे देना, वरना चंद दिनार कम भी वापस किए तो क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ ये ख्याल पैदा हुआ कि सब्र कर ए भले आदमी, अमानत में खयानत का अर्तकाब न कर। कब्र के किनारे बैठकर मालिक की नाफरमानी का सोचता है। चुनाचे फिर असल मालिक के मिलने तक हिमयानी घर रखने चला गया। चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने देख लिया और पूछा कि अबू गयास कैसे आए हो और क्या लाए हो। जवाब दिया कि कुछ नहीं। बूढ़ा बुजुर्ग हिमयानी की खबर छुपाना चाहता था, जबकि उसने आज तक अपनी बीवी से कोई खबर न छुपाई थी। बीवी ने कहा कि वल्लाह आपके पास कुछ जरूर है, लेकिन है क्या बता दो। बूढ़ा बुजुर्ग डरा कि लबाबा कहीं किसी वहम में मुब्तला न हो जाए, उसे सारा किस्सा सुना दिया। वो औरत दीनदार जरूर थी, लेकिन अबू गयास की तरह सब्र और हौसले वाली ना थी। कहने लगी कि जाओ और कुछ खरीद कर लाओ, क्योंकि हम लाचार हैं और लाचार मुसलमान पर मुर्दार भी हलाल है। अबू गयास ने कहा कि नहीं, हरगिज नहीं। अगर तूने इसे हाथ लगाया या किसी को खबर दी तो तुझे तलाक है। उसकी बीवी लबाबा खून के घूंट पीकर खामोश होगी और ये असल मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा ताकि असल मालिक से मिलकर हलाल तरीके से कोई दिरहम हासिल कर सके। वो हरम की तरफ चल दिया। हरम में एक नौजवान मोहम्मद जाफिर तिबरी ज़ेर तालीम था। तिबरी बयान करता है कि मैंने एक खुरासानी को ये ऐलान करते हुए सुना, ऐ हाजियों की जमात, मेरी 1000 दिनार से भरी हुई थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई उसे वापस करेगा अल्लाह उसे दुगना सवाब देगा। एक बूढ़ा बुजुर्ग उठा जो मोहम्मद बिन जाफिर के मवाली में से था। कहने लगा कि ऐ खुरासान के रहने वाले नौजवान, हमारा मुल्क पसमानदा है, हालात अबतर हैं। शायद आपकी हिमयानी किसी खौफे खुदा रखने वाले इंसान को मिल गई हो। आप इसके लिए इनाम का ऐलान कर दे, जिसे लेकर वो बाकी वापस कर दे। नौजवान खुरासानी ने पूछा कि हाँ भाई, कितना इनाम। अबू गयास ने कहा कि 100 दिनार यानी 10वां हिस्सा। ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। दोनों जुदा होकर अपनी अपनी मंजिल पर चले गए। तिबरी कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि वो हिमयानी जरूर इसी शेख को मिली होगी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो बूढ़ा एक खस्ता हाल मकान में दाखिल हुआ और यूं गोया हुआ कि लबाबा कहाँ है। हाजिर हूँ अबू गयास, लबाबा बोली। मैंने एक शख्स को इस हिमयानी की तलाश में फिरते हुए देखा है। मैंने उसे ये भी कहा है कि तू इसके वापस करने वाले के लिए 100 दिनार इनाम का ऐलान कर दे, लेकिन वो नहीं मानता। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा इरादा तो हिमयानी वापस करने का है। लबाबा ने कहा कि अबू गयास, हमें तेरे साथ 50 साल फक्र फाका में गुजारने पड़े हैं। तेरी 4 बेटियां, 2 बहनें, 1 सास और 8वीं मैं हूँ। अबू गयास, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी शान इस अमल से बुलंद है कि ऐसे आदमी को अजाब करे जो उनका वाहिद कफील हो। तूने ना तो चोरी की है न डाका डाला है। ये माल तो अल्लाह ने तेरे सामने रखा है, तू उसे क्यों ठुकरा रहा है? क्या अल्लाह तुझसे इन औरतों के मुतालिक सवाल ना करेगा?
तिबरी कहते हैं कि मैंने बूढ़े के चेहरे को बगौर देखा तो मालूम हुआ कि उसका दिल इन भूखी नंगी बेटियों और मस्कीन उम्मे लबाबा पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि फाकों की बदौलत उनका चमड़ा हड्डियों पर खुश्क हो रहा था और वो दीमक खोरदा लकड़ी की तरह खोखले बदन में सांस ले रही थी। उसके दिल में आया कि कुछ दिनार खर्च कर लूं, लेकिन फौरन याद आया कि 50 साल सब्र से गुजार दिए और आज जबकि टांगें कब्र में लटकी हुई हैं तो 50 साल के सब्र को एक दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान करूं, और फिर अल्लाह ताला मेरे अहलो अयाल पर रहम करेगा। दिल को हौसला देकर बोला कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, 86 साल बाद अपनी लाश को कब्र में नहीं जलाऊंगा। तिबरी कहते हैं कि उसके बाद मियाँ बीवी खामोश हो गए और मैं वापस चला गया। मगरिब की अजान हुई तो बूढ़ा बुजुर्ग दिन भर के कमाए हुए चंद टुकड़ों पर अहलो अयाल समेत अफ्तार करने बैठ गया। बाकी लोग अनवा इकसाम के उम्दा उम्दा खानों से मजे ले रहे थे और इस बात का जरा एहसास न था कि रमजानुल मुबारक ईसार और सखावत का महीना है और अल्लाह ने भूखा प्यासा रखने के लिए रोजे फर्ज नहीं किए थे, बल्कि इसलिए कि मुसलमान वक्ती और इख्तियारी भूख के जरिए महसूस करें कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो भूख पर मजबूर हैं। उनकी हालत पर गौर करके अपने ऊपर अल्लाह के बेपाया एहसान याद करें। जो लोग उम्दा उम्दा खानों से पेट भर कर मस्त हो जाते हैं और उनके हमसाए भूख से सीधे खड़े भी ना हो सकें, तो ऐसे लोगों का कोई ईमान और कोई रोजा कबूल नहीं और ना ये लोग रोजे की हकीकत ही समझ सकते हैं। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तर्जुमा, कि वो आदमी मुझ पर ईमान नहीं लाया जिसने शेर होकर रात गुजारी और उसका पड़ोसी उसके पड़ोस में भूखा लेटा रहा और वो उसके फाका से खबरदार भी था। आदत एहसास को कमजोर कर देती है। जब इंसान हैवानों की तरह बिला नागा नेमतें खाता रहे तो उसे नेमतों की कदर नहीं रहती। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोजे इसलिए फर्ज किए हैं कि वो महदूद वक्त की महरूमी की कड़वाहट से अमीरी की मिठास की कदर करें और दिन की भूख और प्यास से रोटी के लुकमे और पानी के घूंट की कीमत मालूम करें। और तमाम उम्र अल्लाह ताला के एहसान को ना भूलें, अगरचे वो आम ही क्यों ना हों। हजरत इब्राहिम हरबी रहमतुल्लाह अलैह हर रोज रोटी का एक लुकमा बचा कर रखते थे और हफ्ते बाद वो टुकड़े खुद खा लेते थे और रोटी सदका कर देते थे। बूढ़ा बुजुर्ग यही सोचता रहा और मुसलमानों की हालत पर कुटता रहा। फिर कहता, अल्लाह ताला ही नेकी का इल्हाम करने वाला और रोजी तकसीम करने वाला है। उसने रात भी फाका में गुजारी और खजूरें और टुकड़े बूढ़ी सास और बच्चियों में तकसीम कर दिए। तिबरी कहते हैं कि अगले दिन खुरासानी हरम में फिर वही सदा लगा रहा था कि कोई मेरी 1000 दिनार वाली हिमयानी वापस कर दे तो अल्लाह ताला उसे दुगना अजर देगा। बूढ़ा बुजुर्ग उसकी खिदमत में अर्ज करने लगा कि ए नौजवान, मैंने तुझे कहा था कि हमारा मुल्क बेआबो गया है, वसाइल जिंदगी कम है, शायद वो हिमयानी किसी खौफे खुदा रखने वाले को मिल जाए तो इनाम के लालच में वापस कर दे। चलो 100 दिनार ना सही तो 10 दिनार ही का ऐलान कर दे। उसने कहा कि हरगिज नहीं, बल्कि मेरा और हिमयानी उठाने वाले का फैसला तो कयामत को अल्लाह ताला के सामने होगा। उसके बाद दोनों फिर जुदा हो गए। तीसरा दिन हुआ तो खुरासानी नौजवान फिर हरम में सदा लगा रहा था और वही बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए नौजवान, तूने 100 दिनार देने का ऐलान करने से इनकार कर दिया था, फिर 10 दिनार इनाम से भी इनकार कर दिया, तो आज 1 दिनार का ही ऐलान कर दे। शायद कि हिमयानी उठाने वाला इस हलाल दिनार के लालच में वापस कर दे और आधे दिनार से खाना खरीद ले और आधे दिनार से मशक खरीद कर उससे हाजियों को उजरत पर पानी पिलाया करे। खुरासानी ने कहा कि नहीं, बल्कि मैं इस कजिए का फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। बूढ़े बुजुर्ग की उम्मीद का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया और सोचने लगा कि अभी तो 1000 दिनार हाथ में है, सारा ना सही तो 1 दिनार ही रख लूं कि भूखे नंगे पेटों का सामान कर लूं। लेकिन दीनी जज्बा मौजन हुआ और वो यौमुल हिसाब के ख्याल से डर गया। सोचा कि 50 साल के सबर को 1 दिन की लज्जत पर कुर्बान कर देना सरासर घाटा नहीं तो और क्या है, क्योंकि तमाम उम्र की लज्जतें आखिरकार जहन्नम के एक झोंके से भूल जाएंगी और सारी उम्र की महरूमियां जन्नत के एक दीदार से काफूर हो जाएंगी। हदीस में है कि जिसने अल्लाह के डर से कोई नाजायज काम छोड़ दिया हो, अल्लाह ताला उसके बदले हलाल चीज कई गुना ज्यादा अता करेगा। अब अबुल गयास ने खुरासानी नौजवान से कहा कि आओ और अपनी हिमयानी ले जाओ। तिबरी कहते हैं कि मैंने उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जब दोनों घर के दरवाजे पर पहुंचे तो शेख अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद बाहर आया और खुरासानी नौजवान को अंदर ले गया। मैं भी उनके साथ अंदर चला गया। शेख ने अंदर जाकर महफूज जगह से हिमयानी निकाली और नौजवान से कहा, क्या तेरी हिमयानी यही है? नौजवान ने कहा कि हाँ।
फिर बूढ़े बुजुर्ग ने हेमियानी का सार खोल कर दिनार दामन में पलटे और गिने तो पूरे 1000 निकले। फिर कहा कि ये तेरे हैं। लबाबा और उसकी बेटियां ये मंजर दरवाजे के सुराख से देख रही थी, जैसे भूखा देग की तरफ देखता है और सिर्फ चंद लुकमों की तमन्ना करता है। खुरासानी ने दिनारों वाली थैली कंधे पर रख ली और उसके ऊपर चादर ओढ़ कर चल दिया। लबाबा ने ये मंजर देखा तो यूं चकराई जैसे किसी औरत का अकलौता बेटा गुम हो गया हो। उसकी बेटियों की बातें खिली की खिली रह गईं। चंद लम्हों बाद शेख ने आहट सुनी तो नजर उठाकर देखा कि नौजवान वापस लौट आया है। अगर ये बूढ़ा बुजुर्ग उससे रूह गर्दा निकाल लेता तो ये बड़ी बात ना थी, क्योंकि उसने उन भूखे नंगे मस्कीनों को देखकर 1 दिनार तक ना दिया था कि वो अपनी भूख दूर कर सके। लेकिन ये बूढ़ा बड़ा बुर्दबार और हौसले वाला शख्स था। फौरन बोला कि बेटे कैसे आना हुआ। खुरासानी नौजवान ने जवाब दिया कि ऐ मेरे बुजुर्ग, मेरा बाप जब फौत हुआ था तो उसके पास 3000 दिनार थे। उसने मुझे वसीयत की थी कि मेरी सवारी बेचकर हज का खर्च बना लेना और 1000 दिनार उस शख्स को दे देना जो बहुत ज्यादा गरीब हो। चुनाचा मैंने अपने वतन खुरासान से मक्का तक किसी को तो उससे ज्यादा गरीब ना पाया। लो ये दिनार, अल्लाह ताला इनमें तुम्हारे लिए बरकत करे। तिबरी कहते हैं कि वो नौजवान हेमियानी रखकर वापस चला गया। ये मंजर देखने के बाद मैं वापस जा रहा था कि मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसने मुझे अपनी तरफ बुलाकर कहा कि तुझे हमारे मुआवले की खबर हो गई है। और मैंने अहमद बिन यूनुस यरबोई से सुना और उन्होंने नाफे से, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से सुना कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जब कोई हदिया बिन मांगे और बिला तमा आए तो उसे वापस ना लौटाओ, वरना अल्लाह के नाशुक्र बन जाओगे। और हदिया में सब हाजरीन शरीक होते हैं, चलो मेरे साथ चलो। तिबरी कहते हैं कि मैं इसके साथ साथ चलने लगा। उस बुजुर्ग ने मुझे रास्ते में कहा कि भाई तू बड़ा मुबारक है, मैंने उम्र भर ऐसा माल नहीं देखा था और ना देखने की उम्मीद थी। तुम मेरी ये कमीज देख रहे हो, मैं इसमें क़याम लैल करता हूँ, फिर फजर की नमाज अदा करके उतार देता हूँ ताकि मेरी बीवी और बच्चियां और बहनें बारी बारी इसमें नमाज अदा कर सकें। फिर मैं पहनकर जुहर और असर के दरमियान मजदूरी करके चंद खजूरें और रोटी के टुकड़े खरीद कर घर लौटता हूँ। जब हम घर पहुंचे तो बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में पुकारा कि लबाबा और फलां फलां। उस बुजुर्ग की आवाज सुनकर उसकी बहनें, सास और बेटियां इकट्ठी हो गईं। उसने उन सब को दायरे में बिठाकर मुझे बाएं जाने बिठा लिया और हम सब से कहा कि अपने अपने दामन फैलाओ। चुनाचे मैंने तो कमीज दामन फैला दिया, लेकिन बाकी सब ने हाथ फैलाए क्योंकि उनकी कमीज फटी हुई थी। वो 1-1 दिनार हर एक के हाथ पर रखता जाता और 10वां दिनार मुझे देता रहा, यहाँ तक कि हिमयानी खाली हो गई और हम सबको 100-100 दिनार मिले। मगरिब की अजान हुई तो उस बुजुर्ग के अहले खाना भी उम्दा उम्दा खानों के इर्द गिर्द बैठ गए। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी बीवी लबाबा से कहा कि लबाबा, देख लिया तूने, अल्लाह सब्र करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के 1 दिनार से बचाया तो अल्लाह ताला ने हमको हलाल के जरिए से 1000 दिनार अता किए। ये बुजुर्ग चंद लुकमे खाकर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा तो लबाबा ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? अबू गयास ने कहा कि मैं किसी फकीर रोजादार को तलाश करने जा रहा हूँ ताकि उसे अपने साथ खाने में शरीक कर लूं। ये कहकर बुजुर्ग दरवाजे से बाहर निकल गए। तिबरी कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा नफा दिया, उनसे मैं अपनी खुराक हासिल करता रहा। 16 साल बाद वापस आया तो मालूम हुआ कि वो लड़कियां शहजादों से ब्याह दी गई हैं और शेख चंद माह बाद फौत हो गया था। मैं उनके खामदों और बच्चों के पास जाता और उन्हें हिमयानी वाला किस्सा सुनाता। वो बड़ी दिलचस्पी से सुनते और मेरी बड़ी इज्जत करते। फिर 40 साल बाद पता चला कि उनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं रहे नाम अल्लाह का। अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।